آپ سب کو سلام کہتا ہوں. گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. جن ممالک میں فرق وقت ہے ان کو بھی سلام. میں سب سے پہلے مکتبہ میں پاکستان کی 33ویں سالگرہ 33 ایئرز آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں سب کو. کسی بھی تحریک کا یہ طویل تاریخ ہے, طویل سفر ہے, اور میں اس میں ممبران کو جو اراکین ہیں, پھر رابطہ کاروں کو جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں, بورڈ ممبرز کو, اور جو سادوکی میں تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ فار لیٹی ٹل پہ سٹاف ممبرز ہیں ان کو, اور پھر جو ہماری کتابیں اشاعت ہوتی ہیں ان کے مترجمین کو, مصنفین کو, مؤلفین کو, اور جو خریدتے ہیں کتابیں اور جو ہماری کتابیں پڑھتے ہیں, مکتبہ پاکستان کی خدمت سے افادہ حاصل کرتے ہیں, فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کو, اور جو ہمارے تربیت کے پروگرام ہیں جیسے آن لائن کلاسز ابھی ہو رہی ہے, اس میں جو جتنے بھی شرکا ہیں میں ان سب کو مکتبہ پاکستان کی 33 سالہ برتھ ڈے سالگرہ مبارکباد کہتا ہوں. تو یہ میں مبالغہ رائے نہیں کرتا, لیکن یہ ہمارے دوستوں کی تعداد جو مکتبہ پاکستان سے وابستہ ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ ہیں, ہزاروں سے گزر گئی ہے, اب لاکھوں تک پہنچ رہی ہے. تو ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, اور ان سب لوگوں کے لیے جو ہماری نسبت اچھے خیالات رکھتے ہیں, ہمارے خیر خواہ ہیں, ہمارے معالی معاونت کرتے ہیں, اور بھی کئی طریقوں سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں بالخصوص جتنے بھی 33 سالوں میں ڈائریکٹرز ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے اپنے ٹل پہ رہتے ہوئے سٹاف کے ساتھ مل کر اور رابطہ کاروں کے ساتھ مل کر سارے اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور موجودہ ڈائریکٹر مسز لشبہ جاوید اور سٹاف کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور بالخصوص اس 3 سالہ پروگرام کے لیے جو آن لائن کلاسز ہوئی ہیں, کووڈ-19 سے, کرونا کی وبا سے ساری دنیا اور دنیا کا ہر فرد, بیشتر فرد متاثر ہے, فکر مند ہیں, لیکن اس کے باوجود, اس وبا کے باوجود اس نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہمیں آن لائن اکٹھا کر دیا ہے کہ جو پروگرام بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا ہم کر نہیں پائے, لیکن کرونا نے ہمیں مجبوراً یہ برکت اور فضل دیا کہ ہم اس کو کر پائیں, اور یہ بہت اچھی کوشش ہے. جتنے بھی پچھلے سال جو پہلا سال گزرا ہے, جتنے بھی مقررین آئے ہیں, جتنے بھی شرکا تھے, ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور اس نئے سال میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ابھی میں نے سنا, مجھے بتایا گیا تھا کہ اس سال 50 نئے سٹوڈنٹس آئے. پچھلے سال 82 سٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہوئے تھے, کچھ کم ہو گئے, غائب ہو گئے, کچھ چلے گئے, اور پچھلے سال 62 تھے, اس سال 82 سٹوڈنٹ ہیں رجسٹرڈ. تو یہ بڑی حوصلہ افزا اضافہ ہے, اور میں چاہوں گا آپ کو دعوت دینی کہ اس میں آپ بھی آگے آئیں, آپ بھی بڑھائیں, اور لوگوں کو دعوت دیں, اور لوگوں کو قائل کریں, مائل کریں کہ وہ آن لائن کلاسز میں آئیں. یہ مومنین کے لیے پروگرام ہے, اور ہم مومنین کا الہیاتی معیار, الہیات کے مطالعے کا معیار, خواندگی کا معیار, لٹریسی, تھیولوجیکل لٹریسی ریٹ اوپر کرنا, اسٹینڈرڈ اوپر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے, اور مجھے امید ہے جو نئے اسٹوڈنٹس اس سال ہمیں ملے ہیں, جو 50 نئے لوگ آئے ہیں, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, آپ کو بہت معلومات حاصل کریں, اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئے سال کے دوسرے سال کی پہلی کلاس میں, اور بالخصوص خوش آمدید کہتا ہوں جو پہلی بار اس کلاس میں شامل ہو رہے ہیں. میں جو ایڈمنسٹریشن ہے, ایڈمن ہے, ان کو کہوں گا کہ میرے سلائیڈز, جو میرے مضمون کا جو خاکہ ہے, اگر وہ سلائیڈ دکھا سکتے ہیں تو سلائیڈ دکھائیں ایک دفعہ سب کو, اور پھر میں اس کے مطابق اپنے مضمون کو چلاؤں گا. تھوڑا سا اگر اور بولڈ کر سکتے ہیں, اور بے خواہ وہ ایک ایک صحیح ہو, چلو یہی رکھیں. تو میرا مضمون ایسے ہے, پہلے میں تعارف میں 2 باتیں کروں گا, پھر باب اول کلیسیا کی تاریخ, اور باب دوم عالمی کونسل کیا ہوتی ہے, اور باب سوم عالمی کونسلیں, وہ ہم پڑھیں گے. تو ابھی یہ جو سلائیڈ ہے, اگر آپ
तारुफ का 2 पॉइंट दे दें तो काफी है। तारुफ के 2 पॉइंट उन्हें जरा बोल्ड कर दे और मोटा कर दे अगर मुमकिन है। सिर्फ तारुफ के 2 नुक्ते मुमकिन है, मुश्किल है? ओके, बिल्कुल काफी है, काफी है। मेरा पहला नुक्ता है तारुफ में तारीख का मौजू। मुख्तलिफ वजूहात की बना पर और अक्सर व बेशतर तारीख, हिस्ट्री एक खुश्क मजमून है, गैर दिलचस्प है, और ख़ासकर उन सकाफ़तों में जैसे हमारी सकाफ़त है जिसका माजी ज़ुबानी रवायात से कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो बातें ज़ुबानी चलती हैं, लिखी हुई कम होती हैं। ऐसी तहजीब में, ऐसी सकाफ़त में, ऐसी मुआशरत में तारीख़ का मजमून, सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ये हमेशा ही खुश्क और मुश्किल रहा है। लोगों को सन याद रखने की कोई आदत नहीं। हमारे यहाँ तो वैसे भी रिलेटेड हिस्ट्री चलती है, मुतल्लका हिस्ट्री, वाबस्ता हिस्ट्री। किसी को बुजुर्ग अम्मी को पूछे ये बच्चा कब पैदा होता तो वो कहती जब हमारी काली भैंस ने कट्टा दिया था या जब तूफान आया था। तो वो तारीख नहीं बताते, रिलेट करते हैं किसी और चीज से। मैं आज बताना चाहता हूँ कि तारीख हर जिंदगी का हिस्सा है, बल्कि जिंदगी है ही तारीख। हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या जिंदगी में हमारे जो भी काम आते हैं, मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, वो तारीख ही होती है और बनती जाती है, बनती जाती है। जब हम सालगिरह मनाते हैं, खा वो जिंदगी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, या किसी की शादी की सालगिरह हो, या किसी की और सालगिरह हो, ये सारी तारीख का हिस्सा होता है। हम अक्सर तारीख को सिर्फ बादशाहों की तारीख और दरबारों की तारीख और बाइबल के वाक़यात की तारीख समझते हैं। ये वो भी है, लेकिन आपकी तारीख भी है। जिस दिन आप पैदा हुए, आपके दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बू, सारे बहन भाई, ये तारीख का हिस्सा है। तो तारीख में जो आज मैं जिस पॉइंट पे जोर देना चाहता हूँ, ऊंच नीच होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, निशेबो फराज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी भी किसी की भी तारीख सतह मुस्तकीम पर नहीं चलती कि ना उसमें ऊंच हो ना नीच हो, ना दुख हो ना सुख हो, या हमेशा एक ही हालत रहे। ऐसी तारीख किसी इंसान की जिंदगी की नहीं होती, बल्कि किसी दरख्त की ऐसी तारीख भी नहीं होती। हर मौसमों से तारीख मुतासर होती है, मुख्तलिफ बातें हैं। कभी 3 नुक्ते याद रखें तारीख में। एक है फरावानी का, कसरत का, जब सब कुछ ठीक जा रहा है, सेहत, तंदुरुस्ती, रिश्तेदार, अजीज, ताल्लुकात सारे। दूसरा है जवाल का, दुख, बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी और कोई भी वजह से जवाल का। रेस्टोरेशन, दोबारा से ऊपर आना। तो ये तारीख में तीनों आते हैं। हर एक की जिंदगी में किसी खानदान की तारीख भी देखें, वो और बात है कि जिनके हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो जो माजी की तारीख में कड़वी यादें हैं, जवाल की बातें, वो याद नहीं रखना चाहते, यादों से फरार करते हैं, डिनाइल ऑफ हिस्ट्री है, तारीख से मुनकर होते हैं, नहीं नहीं जी हम तो नहीं ऐसे थे। तो ये और बात है, हम इस पे आज नहीं बात करेंगे। मेरा दूसरा नुक्ता है किताब का तारुफ। कोई स्लाइड है किताब का? अगर मुमकिन है तो थोड़ी देर के लिए किताब का तो स्लाइड दिखा दे सरेवर का, अगर मुमकिन है। अगर नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। चलो अगर आ गया तो ठीक है। ये जो आलमी काउंसिलें हैं, मैं भी दिखा सकता हूँ कि नहीं? ये चलो, ये थोड़ी थोड़ी, ये एक किताब है आलमी काउंसिलें, छोटी सी किताब है। ये 67 सफ़े की किताब है और ये सन 2002 में छपी थी, और उस वक्त तो शायद आज भी इसकी कीमत 35 रुपीज़ है, 35 रुपए है। तो आज हम इस किताब के मजमून पे बातचीत करेंगे। इस किताब का तर्जुमा मैं जरूर याद करना चाहता हूँ। फादर नथानियल बर्नार्ड, OFM कैप, एक कैप्चन प्रीस्ट थे, पाकिस्तानी प्रीस्ट थे, बहुत नौजवान थे, कोट लखपत में खिदमत करते थे। और मेरी अक्सर ये कोशिश रही है कि नौजवान फादरों को कहीं ना कहीं मसरूफ रखा जाए। कुछ तो बड़ी जल्दी कतरा जाते हैं मुझसे, कुछ थोड़ा थोड़ा काबू आते हैं। बहरहाल ये काबू आ गए। मैंने कहा इस किताब का तर्जुमा करो, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ किया। नौजवान कायन थे, फिर बीमार हो गए और नौजवान उम्र में ही फौत हो गए। इसलिए मैंने आज यकीन जानबूझ के, वैसे भी करना चाहिए, जानबूझ के हम फादर नथानियल बर्नार्ड आपके हवाले से याद करते हैं।
के लिए दुआ करते हैं। ये जो किताब है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, इसका मजमून भी पढ़ाऊंगा। सबसे अहम बात है नुक्ता नजर, और इस पे मैं बहुत जोर दूंगा और देता हूं। किताबें पढ़ने, इल्म हासिल करने, मालूमात हासिल करने, आलम बनने का कोई फायदा नहीं। आपका अपना नुक्ता वाज़े ना, नुक्ता नजर होता है कि जो भी मालूमात है आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, आप उसे किस पहलू से देखते हैं। और मैं इस पे बहुत जोर देता हूं, मालूमात आपको आलम नहीं बनाती। मालूमात तो गूगल में भी बहुत है, वेबसाइट में भी बहुत है, नुक्ता नजर आपको अहम बनाता है। तो जब तक आपका नुक्ता नजर ना वाजे हो, बात बात में, सोचों में, मसलन मेरा आज नुक्ता नजर वही होगा जो मकतबा नामी पाकिस्तान का, मैं किसी और का नुक्ता नजर तो नहीं पेश करूंगा, मुकामी होगा, अवामी होगा। और उस नुक्ता नजर की वजह से आपके अल्फाज, आपकी इस्तिलाहात और आपका जोर, एम्फसिस फर्क हो जाता है। हम इलाहियाती बातें करेंगे थियोलॉजी के मुतालिक, लेकिन मुकामी और अवामी अलग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म, ये जो ऑनलाइन कॉन्टेक्चुअल थियोलॉजी पे क्लासेस होती हैं, इसका मकसद मालूमात फराहम करना नहीं, नुक्ता नजर सिखाना है। मालूमात तो हम देंगे आपको, लेकिन उन मालूमात को आपने कैसे सीखना है वो। तो मालूमात तो एक दो ही होती हैं। आपके पास एक भी मालूमात हो, और अगर आपका नुक्ता नजर क्लियर हो, उसको बताने का नुक्ता नजर क्लियर हो, तो आप एक हवाला बन जाएंगे पाकिस्तान में। मालूमात नहीं अहम तो है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं एक भी मालूमात हो लेकिन नुक्ता नजर क्लियर हो, तो फिर आप हवाला बनते हैं, रेफरेंस बनते हैं। तो हमारा मकसद पहला है मालूमात फराहम करना नहीं, नुक्ता नजर सिखाना है। दूसरा मकसद यह है आलम बनाना नहीं, मोमन बनाना है, या एक बेहतर स्टूडेंट बनाना है, एक तालिब इल्म बनाना है और मुअस्सर मोमन बनाना है। ये मकतबा नामी पाकिस्तान का नुक्ता नजर है। तो मैं बाप अव्वल पे जाऊंगा, कलीसिया की तारीख। बाप अव्वल को थोड़ा सा ऊपर करे स्लाइड को, और ऊपर और ऊपर, बस। तो इसमें मेरे 3 नुकात हैं, बाइबल की तारीख और कलीसिया की तारीख, क्योंकि ये आज का हमारा मजमून कलीसिया की तारीख से मुतल्लिक है। दूसरा कलीसिया की तारीख के अहम अनासर, अवामल और मुहर्रकात, और तीसरा अहम मुक़द्दसीन। तो कलीसिया की तारीख क्या है, पहले मैं बताना चाहता हूँ बाइबल की तारीख क्या है। बाइबल की तारीख यीशु मसीह से लेकर यूहन्ना आरिफ की, यूहन्ना रसूल की शहादत तक है। और ये तकरीबन, मैं तकरीबन बता रहा हूँ, 1 साल है, पहली सदी। यीशु मसीह जब पैदा हुए, जो कैलकुलेशन है सन्ने मसीही की, वो है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो ये हमारा साल शुरू हुआ, जो आज 2022वां साल जा रहा है। तो यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर यूहन्ना आरिफ की शहादत, पहला जो 100 साल है, ये बाइबल की तारीख है। जब बाइबल बंद हो जाती है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसके बाद कलीसिया की तारीख शुरू होती है। तो बाइबल की तारीख, हिस्ट्री ऑफ द बाइबल फर्क है, उसमें बहुत कुछ है, बड़े अदवार है, पीरियड्स है, हिस्ट्री ऑफ द बाइबल। कलीसिया की तारीख यानी यूं कह ले 101 से लेकर, सन 101 से लेकर अभी 2022 तक, इसको अब कलीसिया की हिस्ट्री ऑफ द चर्च कहते हैं। जो कुछ भी इसमें आया वो तारीख कलीसिया की तारीख है। जो 100 सन से पहले हुआ वो बाइबल की तारीख, तो हजरत इब्राहिम से लेकर और आगे चलती है वो बाइबल की तारीख है। तो मैं आपको वो हिस्ट्री ऑफ द बाइबल की तारीख और हिस्ट्री ऑफ द चर्च, कलीसिया की तारीख बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, कलीसिया की तारीख में जो अहम अनासर, अवामल और मुहर्रकात, आज ये मेरा मजमून नहीं है, लेकिन मैं इस बात तो करना चाहता हूँ। 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कलीसिया की तारीख में रसूली बुजुर्ग, एपोस्टोलिक फादर्स। ये आपको लफ्ज याद रखना पड़ेगा अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हैं। एपोस्टोलिक फादर्स, रसूली बुजुर्ग, ये पहले कुछ तकरीबन 150 साल का वक्त है। वो लोग जो रसूलों के बिल्कुल करीब थे, ये वो लोग जो रसूलों की नस्ल पुश्त के बाद आए, जो बहुत ही करीब थे, और किसी भी मजहब में, मजहब के जिसने बुनियाद रखी होती है, उसके हवारियों के बाद जो आते हैं नेक्स्ट जनरेशन, अगली पुश्त, वो बहुत अहम होती है। उनकी बात तकरीबन उनके बानी जैसी
तो ये जो रसूली बुजुर्ग है, इनकी बातें इतनी ही अहम है जितनी पाक अंजील में लिखी हुई है। इनको अब रवायत कहते हैं, रसूली बुजुर्ग। आज ये वो वक्त नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा आगे, लेकिन आगे जाऊंगा। दूसरा है अबाए कलीसिया, चर्च फादर्स। ये पहले 500 साल की हिस्ट्री है, उसमें जितने भी आए मुकद्दसीन, बड़े बड़े आलम आए, उनको हम फादर्स ऑफ द चर्च, पेट्रोलॉजी, पैट्रिस्टिक कहते हैं। अबाए कलीसिया, पहले मैंने कहा रसूली बुजुर्ग, एपोस्टोलिक फादर्स, और अबाए रसूली भी कहते हुए, और दूसरा है अबाए कलीसिया। तीसरा जो नुक्ता है कलीसिया की तारीख में, वो है मुअल्लिमीन कलीसिया, उलामा कलीसिया, डॉक्टर्स ऑफ द चर्च। जैसे अल्लामा इकबाल है, वो डॉक्टर इकबाल है, तो उनके मानी ये नहीं है कि उन्होंने कोई हकीमी या तिब या डॉक्टर, कोई डॉक्टरी पास की थी, वो आलम है, उन्होंने पीएचडी की हुई थी, तो जो वो करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ उन लोगों को जो मुअल्लिमीन कलीसिया हैं, उन लोगों को जो जिन्होंने कलीसिया के ईमान का दिफा किया, फरोग दिया, तो ये एक बहुत बड़े लोग हैं। मैं चाहूंगा अगर एडमंड स्लाइड 2 से 3 और 4 चलाए, जिसमें अबाए कलीसिया, या सॉरी मुअल्लिमीन कलीसिया में बताना चाहता हूँ। मुअल्लिमीन कलीसिया, मुअल्लिमीन कलीसिया का स्लाइड है, स्लाइड नंबर 2, 3, 4 चलाएंगे आप? ओके, नहीं ये नहीं, ये नहीं, अगला, इससे अगला, इससे पिछला, इससे पिछला, इससे भी पिछला। आप आगे जा रहे, मैं पिछला कह रहा हूं जी। ये यार नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया स्लाइड, स्लाइड नंबर 2, ये ठीक है। तो कलीसिया में 2022 तक 37 उलामा कलीसिया है, मुअल्लिमीन कलीसिया है, डॉक्टर्स ऑफ द चर्च है। इन्होंने अपने अपने वक्त में मुख्तलिफ अंदाज में ईमान का दिफा किया, ईमान को फरोग दिया। तो ये इस किताब के आखिर पर ये फहरिस्त है, जिस किताब की मैं आज पढ़ाई दे रहा हूँ, कि उसके आखिर पे 37, आगे चलिए, अगला स्लाइड, अगला स्लाइड। नहीं ये नहीं, इससे पिछला, अब ध्यान से मेरे साथ रहे, इससे पिछला, इसको क्लिक करें, यस। वो पहले पे 19 थे, इस पे 32 हैं, और जो 5 हैं वो अगले स्लाइड पे हैं। तो ये उलामा कलीसिया है। आज ये हमारा मजमून है, इनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आपको अगला भी चला दे, अगला स्लाइड, चौथा स्लाइड जी। और ये 37 है। मैं सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक ये है कि ये जो सन लिखे हुए हैं और आगे पोप का नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि किस सन में किस पोप ने इन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च, मुअल्लिमीन कलीसिया, उलामा कलीसिया करार दिया। जिंदगी तो इनकी पहले से गुजर गई थी, लेकिन बाद में इनको, तो इनमें जो पहले 18 हैं, पहला स्लाइड दिखाइए, पहला स्लाइड, स्लाइड नंबर 2, सॉरी स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2 क्लिक करें, स्लाइड नंबर 2, उधर कर्सर है आपका, क्लिक करिए। इनमें जो 37 उलामा कलीसिया है, डॉक्टर्स ऑफ द चर्च है, इनमें 18 कलीसिया में बहुत अजीम फूट पड़ी थी 1054 सन में, 1054, 1054 सन में शिज़्म हुआ था। इसकी मैं बाद में बात करूंगा, उससे पहले ही मर गए थे। और इनमें 37 में 28 मगरब से हैं और 9 मशरक से हैं। इनमें 37 में 4 खवातीन भी हैं, 19 बिशप हैं, 12 काहन हैं, 1 डीकन है। तो इन 37 में 27 यूरोप से हैं और 7 एशिया से हैं और 3 अफ्रीका से हैं। और सबसे ज्यादा मुअल्लिमीन एक सदी के लिहाज से 4थी सदी में हुए हैं। 4थी सदी में 12, 4थी सदी के 12 डॉक्टर्स ऑफ द चर्च है।
और पहली से तीसरी सदी को ज्यादातर निकाया से पहले कहते हैं, निकाया के पहले के मौलमीन मैं समझाऊंगा। और 9वीं सदी में और 20वीं सदी में कोई मौलम पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। तो एक और भी बात है कि 2 साल अहम होते हैं। एक साल जब वो मरा और जब वो डॉक्टर ऑफ द चर्च करार दिया गया, जब ऐलान किया गया कि वो कब करार, तो इसमें मौत और ऐलान के दरमियान जो साल है, सबसे मुख्तर दुरानिया जो है वो 84 साल है। यानी अल्फोंस लिगरी, एक अल्फोंस लिगरी है, ये तो जरा ये दूसरे नंबर पर हैं। इनको मरने के बाद 84 साल के बाद आलम करार दिया गया, मुअल्लिम करार दिया गया। जबकि अरीनियस को जो 1787 में पैदा हुए और फिर 1787 में वफात पाई, और ये 1800 साल बाद अरीनियस को उलामा डॉक्टर्स ऑफ द चर्च करार दिया गया। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये डॉक्टर्स ऑफ द चर्च ने कलीसिया को बहुत मुतासर किया इल्म को। ये मेहरबानी से स्लाइड हटा दे, खत्म कर दे सारे स्लाइड। तो फिर आते हैं मुकद्दसीन। जो कलीसिया की तारीख में मुकद्दसीन होते हैं उनकी हम बाद में भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं मुकद्दसीन की बहुत सारे मुकद्दसीन हैं, लेकिन मैं उन मुकद्दसीन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने बाद अपने नाम पर कोई रूहानी विरसा छोड़ा है, स्पिरिचुअल लेगेसी। यानी जिन्होंने जमातें छोड़ी, जिनके नाम पर जमातें हैं। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे मिशनरी हैं, जमातें हैं, आप उनसे वाकिफ हैं। तो उन मुकद्दसीन की बात कर रहा हूँ। या जिन्होंने अपने नाम में कोई राबाना घराने, जायदाना घराने दी किए, या जिनकी कोई किसी वजह से खुसूसी ताजीम होती है, नवीने होते हैं, जिनके नवीने पढ़े जाते हैं, तो वो थोड़े से ज्यादा मशहूर होते हैं, उनको लोग ज्यादा जानते हैं। बाकी तो जब उनकी ईद आती है तो वो जानते हैं। मसलन यूरोप में, सारी दुनिया में 14 ऐसे मुकद्दसीन हैं जो 14 खास जरूरत के वक्त उनसे सिफारिश मांगी जाती है। बड़े बड़े दिलचस्प हैं, आज मैं वो नहीं बताऊंगा। 14 जैसे एक तो आम है मुकद्दस एंथनी, खोई हुई चीजों का मिलना, जो किसी का कोई चीज गुम हो जाए मुकद्दस एंथनी से दुआ करते हैं। दूसरी बातों में भी दुआ करते हैं। तो बहुत सारी, जिनके एक मैं और मुकद्दस का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हमारा मजमून नहीं है। एक मुकद्दस है जिनके कोई लव अफेयर, मोहब्बत की जो नाकाम हो जाए, बेवफाई हो जाए, तो उसके लिए भी दुआ करते हैं। बहरहाल 14 ऐसे मुकद्दसीन हैं जो जरूरत के वक्त जिनकी सिफारिश तलब की जाती है। मेरा दूसरा पॉइंट है, आप बाब अव्वल के स्लाइड को दिखा सकते हैं एडमन, बाब अव्वल के स्लाइड को। बाब अव्वल कलीसिया की तारीख का स्लाइड जी। इसमें जो दूसरा पॉइंट है मैं उस पर बात करूंगा, कलीसिया की तारीख के अहम अनासर और अवामल और मुहरकात। ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ये जो आलमी काउंसिलें होती हैं किसी ना किसी वजह से होती हैं, तो मैं पहले आपको वो बताना हूँ। तो ये कलीसिया में एक बहुत बड़ा मसला, इस पे आप मेरे साथ फर्क राय रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय अपनी बता रहा हूँ जो मकतबा ने पाकिस्तान की है। जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटाइन था, उस दुनिया की रियासत का जो बादशाह था, जिसकी माँ का नाम हलीना है, जब उसने मसीही मजहब कबूल किया और मसीही मजहब को सियासी इख्तियार, शाहाना इख्तियार मिला, तो उस वक्त से मसीही मजहब थोड़ा थोड़ा अपनी सही लाइन से निकल गया। जिस भी मजहब को सियासी इख्तियार मिल जाए, बादशाह की सपोर्ट मिल जाए और उसे बादशाह इस्तेमाल करे और वो मजहब बादशाह को इस्तेमाल करे, उसकी, मैं कह रहा हूँ मजहब और रियासत की बात कर, तो उस वक्त से वो जो मजहब है वो थोड़ा सा गुमराही की तरफ चला जाता है। तो कलीसिया उससे पहले गरीब थी, चुप चुप के रहती थी, अजीतें सहती थी। जो ही ये बादशाह ने बपतिस्मा लिया, इसकी माँ और ये मजहब के दीवाने हो गए। इन्होंने बड़े बड़े कैथीड्रल, बड़े बड़े फादरों की कोठियां, बड़े बड़े इख्तियारात दे दिए। और जब कलीसिया में, सुने मेरी बात,
तब कलीसिया गुमराह और बेराह और रवि का शिकार होती है, जवाल होना शुरू हो जाता है। और आज हम देखेंगे आलमी काउंसिलों में, आलमी काउंसिल इससे लड़ती रही, इख्तियार खिदमत को भूलकर इख्तियार की बात। तो ये जो तारीख के अहम अनासर हैं, पहला नुक्ता है अहम अंदरूनी इंतशार। कलीसिया के अंदर अंदरूनी इंतशार थे। एक तो इंतशार था जुबान का, जो मशरक की तरफ कलीसियाएं थी, यानी ये जो तुर्की से लेकर वो यूनानी बोलती थी, और मगरब में जो कलीसिया थी, जो यूरोप में थी, वो लातीनी बोलती थी। अब जो लातीनी बोलते थे वो बात करते थे तो यूनानियों के लिए उस बात को समझ तो आती थी, लेकिन उनके पास अपने खास इस लफ्ज से टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती। दूसरा कलीसिया का तारीख अहम है टूट फूट, तकसीम। बाद में वो तहरीकें बन गई, बाद में वो कलीसियाएं बन गई, अलहदगी। मैं दो का जिक्र करूंगा, ये आपने लिखना है। पहली है 16 जुलाई 1054, 16 जुलाई 1054, ये डेट आपने याद रखनी। ये कलीसिया में पहली आलमी फूट थी, इसको अंग्रेजी में शिज़म कहते हैं, SCHISM, शिज़म। ये लफ्ज लिख सकता है, याद कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत है शिज़म। ये बड़ी अजीब फूट थी, मैं समझाता हूं क्या। ये कैथोलिक चर्च के अंदर जो शर्की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया वो अलहदा हो गई थी। कलीसिया में कैथोलिक चर्च एक तरफ हो गया, कैथोलिक चर्च वो है जो वेटिकन में, रोमन कैथोलिक चर्च जो वेटिकन के पोप को मानते हैं, और ये जो दूसरे कलीसिया हैं वो ऑर्थोडॉक्स चर्चेज, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्चेज। जब आपने कभी वेटिकन में कोई प्रोग्राम देखा हो, पाकमास देखी हो, तो वहां मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके, थोड़ी देर के लिए सिलसिला टूट गया था। तो मैं बात कर रहा था 16 जुलाई 1054 की, जो कलीसिया में शिज़म हुआ था, टूट फूट हुई थी। सारी दुनिया की कलीसिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ रोमन कैथोलिक कलीसिया जो पोप साहब के मतहत, और दूसरी तरफ इसको वेटिकन की कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया का, दूसरी तरफ बाज़ंतीनी कलीसिया जो पेट्रियर्क्स, उन्होंने अपने अपने पेट्रियर्क्स बना ले, रशियन ऑर्थोडॉक्स, कॉप्टिक चर्च इजिप्ट की, और अर्मीनियन ऑर्थोडॉक्स और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, इन्होंने अपने अपने पेट्रियर्क पोप जैसे ही होता है, लेकिन इन्होंने अपने अपने बना लिए, और उनके अकीदे और कैथोलिक कलीसिया के अकीदे एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं बता रहा था, जब कभी आपको पोप साहब की कोई प्रोग्राम या पाकबास देखे, तो उसमें कोई दाढ़ियों वाले और लंबे लंबे काले स्याह चोगे और सिर पे टोपी पहन के आते हैं, वो पेट्रियर्क्स होते हैं, वो ओरिएंटल चर्चेज के, ऑर्थोडॉक्स चर्चेज के सरबराह होते हैं। तो ये कलीसिया दो हिस्सों में तकसीम हुई 1054। दूसरा जो बहुत बड़ी फूट थी, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बस बता रहा हूँ, दो कलीसिया के अंदर जो दो फूट हुई हैं वो बता रहा हूँ, एक 1054 की और दूसरा 1517 की, जो जिससे आप भी वाकिफ है, जब प्रोटेस्टेंट कलीसिया अलहदा हुई। ये मार्टिन लूथर की बात है, और ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया कैथोलिक कलीसिया से अलहदा हुई। तो मैं इसलिए जोर देना चाहता हूँ, जो 1054 में शिज़म हुआ था वो प्रोटेस्टेंट नहीं है, वो कैथोलिक ही है। सिर्फ पोप साहब को नहीं मानते, आजकल मिलते जुलते हैं पोप साहब, उन्हें भाई भाई कहते हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। पिछले दिनों भी पोप साहब गए थे, तो उस वक्त बातें की थी उन्होंने। तो फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंटों में मजीद कलीसियाएं बढ़ गई, और कलीसियाएं बन गई, कलीसियाओं के बाद फिरके भी बन गए, और फिर 1948 में
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, चंद एक प्रोटेस्टेंट कलीसियों ने मिलने की कोशिश की, आपस में मिलाप किया, उसको WCC वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस कहते हैं। कलीसिया में तीसरा नुक्ता है मुकद्दसीन। अहम मुकद्दसीन मैंने पहले बता दिया है, वो मुकद्दसीन या तो जिन्होंने कोई रूहानी विरसा छोड़ा, कोई राहबाना घराने बनाए जिनके नाम में मुकद्दस फ्रांसिस है, मुकद्दस डोमिनिक है, और बहुत सारे मुकद्दस बर्नार्ड है जिन्होंने मोनास्टिक लाइफ शुरू की, या जिनकी कोई खुसूसी ताजीम होती है। मैं यीशु मसीह और मुकद्दस मामरीम के अलावा बातें कर रहा हूँ जिनके नवीने होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नवीने होते हैं जो मिशनरी लेके गए होते हैं। तो इसलिए ये अगला पॉइंट है। बाब 2 आलमी काउंसिल, बाब 2 को थोड़ा सा ऊपर करिए। आलमी काउंसिल, आलमी काउंसिल क्या होती है? बाब थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करे। जब तमाम तर कलीसिया के आला कायदीन इज्तिमा करते हैं ईमान के अकीदों के मुतल्लिक या अमली अमूर के तशरीह करने के लिए या कोई हतमी तयन करने के लिए, फैसला करने के लिए, तो उसको हम आलमी काउंसिल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर आलमी काउंसिलें ईमान का दिफा और फरोग करने के लिए होती हैं। ईमान के दिफा में वो पाक तस्लीस के मुतालिक बातचीत करते हैं, हुई हैं। खुदा के बारे में तो नहीं ज्यादा, यीशु मसीह के बारे में, खासकर उनकी दो जातों के बारे में, अलूहियत और इंसानियत, कामल खुदा और कामल इंसान, जैसे हम रसूलों के अकीदे में या नकाया के अकीदे में पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने यीशु मसीह की अलूहियत पर जोर दिया और कलीसिया ने उसे भी बिदती करार दिया, और कुछ लोगों ने यीशु मसीह की इंसानियत पर जोर दिया और दूसरी जात का इनकार किया, और कलीसिया ने उन्हें भी बिदती, हेरेसिस, हेरेटिक्स करार दिया। और कलीसिया अपनी तालीम की तशरीह करने के लिए, ईमान का दिफा करने के लिए काउंसिल बुलाती थी, आलमी काउंसिल। रूल कुदस के मुतालिक भी कुछ फर्क ख्यालात थे, मुकद्दसा मरियम के मुतालिक भी। तो बहुत सारी काउंसिल हैं जिनमें ये अकीदे हुए, डिस्कस हुए। मुकद्दसीन के बारे में, मुकद्दसीन की ताजीम करनी चाहिए कि नहीं, सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं, फिर उसके मुताबिक मुकद्दसीन की, यीशु मसीह की, मां मरियम की तस्वीरें और मुजस्समे रखने चाहिए कि नहीं, ये ईमान के दिफा और फरोग में आते हैं। और बहुत सारी काउंसिलों के ये मजमून रहे हैं, आलमी काउंसिलों के, और उनमें फिर ये फैसले भी हुए। फिर कुछ कलीसिया के मुतालिक अमूर होते हैं कलीसिया के अंदर, कोई मैं आगे चल के बहुत सारी और बातें बताऊंगा, कहानत के बारे में, राहबाना घरानों के बारे में, पोप साहब के बारे में, पापाई खिदमत के बारे में, और कुछ कलीसिया के कवानीन के बारे में। मैं अभी नुक्ता नंबर 3 पे जाता हूँ, इबादत और अकीदत। इन काउंसिलों में कोई सक्रमेंटों के मुतालिक भी डिस्कस किया जाता है। सबसे बड़ा सक्रमेंट, ज्यादा सक्रमेंट तो सारे अहम और बराबर ही होते हैं, ये फजल का जरिया है, लेकिन कलीसिया के मिजाज में यूखरिस्त और पाक खिदमत अहम है। दोनों नथी हुए हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं होता। पाक खिदमत यानी फादरों की मखसूसियत, फादर होगा तो यूखरिस्त होगी। तो कलीसिया ने ये इनको दो को ज्यादा अहमियत दी है ताकि कलीसिया का अदारा चलता रहे, इन दो के बगैर अदारा नहीं चलता। तो यूखरिस्त के बारे में, यीशु मसीह की जिंदा मौजूदगी के बारे में काउंसिलों ने बातें क्लियर की। पाक खिदमत के बारे में बहुत खतरनाक बात मैं करने लगा हूं। मैंने अपनी किताब क्या दायमी ऐद बंदी, जो निकाह के सक्रामेंट के तकद्दुस के बारे में है, किताब का नाम दायमी ऐद बंदी। पाकिस्तान में एक दफा वो बैन हो गई थी, बिशप साहबान ने एतराज किया था नाम पर ही कि ये नाम तो राहबाना घरानों के जब फादर सिस्टर बनते हैं वो दायमी ऐद बंदी करते हैं, आपने क्यों रखा है? तो मैंने फिर पूछा था, बिशप जी आप मुझे बताएं, आपके अम्मी अबू के निकाह के रस्म दायमी ऐद बंदी है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये लफ्ज फादर सिस्टर ने इस पे क्या जारादारी, मोनोपली रखी हुई है कि कोई और इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मेरे अम्मी और अबू का निकाह दायमी ऐद बंदी है, लेकिन चूंकि मैं मोमिन की बात कर रहा था, उन्होंने ये किताब बैन कर दी। तो एक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, उसने ये फैसला किया था कि जो कहे
कि शादीशुदा शख्स, पाक निकाह का शख्स काहिन से बराबर है या बड़ा है, उस पे फतवा हो, लानत हो उस पे। तो मैंने उस किताब पे काउंसिल ऑफ ट्रेंट पे निक्ता चीनी की है कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट इस निकाह के सक्रामेंट के खिलाफ जो बात की है अपने अल्फाज वापस ले। कलीसिया निकाह में बंधे हुए खानदानों से मुआफी मांगे, तब हम आगे एक बात करेंगे। तो सक्रामेंटों की बात है, पाक यूखरिस्त की बात है, पाक खिदमत की बात है, पाक निकाह की बातें हैं। और ये जो ईमान की तालीम है, बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूं, सुबह शाम की इबादत की दुआओं में है। जितनी भी जहां जहां सुबह शाम की दुआएं की जाती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, जो हमारी मसीह कैथलिक इबादत की किताब में है, उनमें ईमान के सारे भेद हैं। खा वो 10 काम हो, कलीसिया के 5 हुक्म हो, खा वो ईमान की 4 खास चाहिए हो, हमारे बाप हो, माँ हो, सलाम मरियम की नमाज हो, या ईमान की खास सच्चाइयाँ, बहुत सारी नमाजें। तो इनमें रसूलों के अकीदे में हमारे 12 अकीदे हैं। तो ये जो सारे अकीदे हैं, दुआएं हैं, नमाजें हैं, ये जी, एम आई ऑडिबल, सुना जा सकता हूँ? जी फादर जी, अभी सुन सकते हैं ओके आप। ओके, थैंक यू। तो मैं वहीं से छोड़ता हूँ जहां से मैंने, वहीं से शुरू करता हूँ जहां से छोड़ा था। मैं बात कर रहा था कि हमारे ईमान के अकीदे हमारी इबादत में है, सक्रामेंटों में है, उनकी दुआओं में है, सुबह शाम की दुआओं में है, रसूलों के अकीदे में जो हमारे 12 अकीदे हैं बुनियादी, वो भी हैं। कलीसिया अमूर, चौथा नुकता, कलीसिया इंतजामी अमूर। ज्यादातर काउंसिल में बाद में इस पे अपना नुक्ता चीनी भी करूंगा, नाकदाना राय भी पेश करूंगा। ज्यादातर काउंसिलें कलीसियाई अमूर पे, कलीसिया के अंदर, पैरिश के, डायसिस के, कलीसिया के अंदर क्या होता है उस पर बातचीत करते हैं। इसमें कलीसिया का कानून भी आता है। तो बहुत सारी काउंसिलें मैं बाद में बात करूंगा। बिशारती और मिशनरी नहीं थी, उनका कुछ ज्यादा तवज्जो लोगों पे नहीं था, बिशारत पे नहीं था। वो अपने अदारे को संभालने के लिए, कायम रखने के लिए काउंसिलें करते थे। और जब बादशाहत और मजहब मिला हो तो वो कलीसिया इख्तियार में लिपटी होती है। जो इख्तियार में लिपटी कलीसिया होती है उसको पासबानी फिक्र नहीं होती, वो लोगों की बात नहीं करती, वो अपने आप को संभालती है, अपने आप को मुस्तकिम करती है, इख्तियार को मुस्तकिम करती है, खिदमत कम होती है। ये मेरा क्रिटिक है। दूसरा नुक्ता है, नहीं सॉरी, अब हम बाप सोम पे जाएंगे। बाप सोम, ये वक्त और मुकाम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये स्लाइड नंबर ये चलाएं 5 या 6, मुझे दिखाएं स्लाइड नंबर 5 और 6, स्लाइड नंबर 5 और 6। ये आगे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। नहीं, ये पीछे जाए, पिछला स्लाइड, इससे पिछला, और पीछे, और पीछे जाए। इससे पिछला स्लाइड, जी ये नहीं, इससे आगे, पहले आगे चले जाए।
नेक्स्ट नेक्स्ट आगे जी जी, ये इस किताब के आखिर पर एक सारे पिछला स्लाइड, इससे पीछे आज तक 21 काउंसिलें हुई हैं। ये जो वेटिकन मजलिस दोम है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, वो 21 काउंसिल थी और 20 उससे पहले हो चुकी है। तो आज तक कैथोलिक कलीसिया में, चर्च की हिस्ट्री में 21 काउंसिलें हैं। चलो इनका हम जिक्र बाद में करेंगे। और जब काउंसिल होती है उसका नाम उस जगह के हिसाब से पड़ता है जहां वो हुई थी। अगर कराची में हुई है तो काउंसिल ऑफ कराची होगी, अगर मुल्तान में हुई है तो काउंसिल ऑफ मुल्तान। तो ऐसे ये जितने भी नाम होंगे वो वहां से होंगे। ये स्लाइड को खत्म करके आप जरा प्लीज मेरे आउटलाइन पे आ जाए, खाके पे आ जाए, आज की गुफ्तगू के खाके पर। जी, वक्त और मकाम मैंने बता दिया, ये मैं बाद में भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद जब मैं चौथा नुक्ता बताऊंगा। फिर दूसरा है नुक्ता पस मंजर और सियाको सुबाक। इसमें मैं 3 छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। पहला नुक्ता है बहरान और खतरात में खुद को संभालना। जब कलीसिया के अंदर इंतशार पैदा हो जाते थे, उनको निपटने के लिए नित नए इंतशार होते थे, काहिनों के, बिशप के, पोप के। कलीसिया में नजरियाती तौर पे तकसीम और फूट पड़ जाती थी, धड़े बंदियां हो जाती थी, और किसी न किसी ने एक की हमायत और एक की मुखालफत करनी होती थी, और हथियार भी इस्तेमाल होते थे कभी कभी। तो ये इख्तियार, जब इख्तियार से कलीसिया लिपटती है और खिदमत से अलहदा होती है, यानी खुद को मजबूत करना चाहती है इख्तियार, और लोगों की खिदमत से दूर होती है, फिर उसमें ऐसे नुक्ते आते हैं, धड़ेबंदियां, मुखालफत, जो भी है। सियासी इख्तियार वाले पोप भी थे। सियासी बादशाहों ने बिशपों, कायनों को सपोर्ट किया, पोप साहबान को सपोर्ट किया, और कुछ पोप साहबान ने जुल्म भी किए। आज हमारा नजरिया फर्क है, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। सच्चे ईमान को फैलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, एजाएं भी दी, सजाए मौत भी दी, कई उलमा की किताबें भी जलाई। तो बादशाह करता था तो पोप हिमायत करता था, क्योंकि अगर मुखालफत करता, अगर पोप मुखालफत करे, मुखालफत नहीं करते तो वो मसले में होते हैं। आज भी कलीसिया खामोश है, पाकिस्तान की कलीसिया खामोश है। जब कोई गलत बात होती है तो कलीसिया बोलती नहीं, क्योंकि कलीसिया को के सियासत के साथ, रियासत के साथ कोई ना कोई काम पड़ता रहता है। तो अगर पोप को बात करता था तो बादशाह हिमायत करता था। तो ऐसे ये लेना देना नजरिया जरूरत के तहत कि आप मेरी बात करें, मैं आपकी बात करूं। तो ये पहला नुक्ता ये था, खुद को संभालने के लिए बहरान और खतरात में। उसके बाद काउंसिल होती थी। दूसरा मकसद ये था पस मंजर, अंदरूनी तनज़ली और जवाल। जब कलीसिया के अंदर खासकर कायदीन की जिंदगी में, राबाना जिंदगी में, पाकदामनी की जिंदगी में इखलाकी जवाल आता था, रूहानी जवाल आता था, बदनवानियां होती थी, और फिर ये काउंसिलें बुलाई जाती थी। मसलन 10वीं और 11वीं सदी में, बातचीत करेंगे हम बाद में, पापायत की तनज़ली और जवाल का 2 सदियां हैं। एक दफा 2 पोप थे और एक दफा 3 पोप रहे हैं। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़िए, ये जो 67 सफ़े की किताब है, इसमें सारी बातें वक्त लिखे हुए हैं 2 पोपों के भी। और एक फ्रांस में रहता था, एक रोम में रहता था, वेटिकन। और फिर 2 पोपों को खत्म करने के लिए, एक पोप रखने के लिए एक मजलिस बुलाई गई, और उसमें नाराजगी हो गई और 3 पोप हो गए। तो ये 10वीं और 11वीं सदी के मसाइल रहे हैं। तीसरा नुक्ता है, ये पस मंजर और सियाको सुबाक की बात करूं। पहला मैंने बताया कि अंदरूनी इंतशार, खुद को संभालने और बहरान और खतरात। दूसरा मैंने बताया अंदरूनी तनज़ली और जवाल। तीसरा है बिदतों के खिलाफ दिफा, कि इन काउंसिलों का पस मंजर और सियाको सुबाक क्या होता था। बिदतें, गलत तालीमात, गुमराह कुन तालीमात होती थी, और उनके रूबरू
अच्छे सही रासख ईमान और मुस्तनद ईमान की तबलीग करने के लिए, लोगों तशरीह करने के, लोगों को समझाने के लिए काउंसिल बुलाई जाती थी। मसलन नकाया की काउंसिल दोम, नकाया दोम नाइसियन, जो 787 में हुई थी, उससे पहले मुकद्दस आर्ट के खिलाफ बगावत हुई थी कि तस्वीर खत्म कर दो, मुजस्मे तोड़ दो, ममनू कर दो, मिस्मार कर दो। और इस काउंसिल ने इनको बहाल किया कि मुकद्दस आर्ट रखना जायज है, मुकद्दस तस्वीरें, मुकद्दस मुजस्मे रखना जायज है। तो ये 787 की बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर हिस्टोरिकल तारीखी पस मंजर पता हो, सियाको सबाक पता हो, जैसे बरादरियों में होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर बरादरी इकट्ठी होती है सुलह सफाई करने के लिए, तो उस इकट्ठ का, उस इज्तिमा के पीछे एक पस मंजर होता है। या कोई और भी मसला हो, कोई बात हो, कोई भी मसला हो, तो बरादरी फिर इकट्ठी होती है या पैरिश काउंसिल इकट्ठी होती है। तो ऐसे माहौल में जब बिदतें हों, बिदतों के खिलाफ दिफा में आलमी काउंसिलें बुलाई जाए, तो फिर सजाओं का ऐलान किया जाता है कि ये जो इस तालीम से वाबस्ता होंगे, गलत तालीम से, उनको ये सजा दी जाएगी। और फतवे, कॉन्डमनेशन, लान पे, एक लतीनी का लफ्ज है, अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है, अगर आप याद कर सकते तो बहुत अहम लफ्ज है, अनैथमा। अनैथमा, ANTHEMA, अनैथमा। अनैथमा के मानी है मलून हो वो, लानत हो उस पर जो ये बात करे। तो कलीसिया दावे फतवे देती थी और फिर ये अनैथमा सित, उस पे लानत हो। मेरा तीसरा नुक्ता है मकासद और नुक्ता नजर। बड़ा दिलचस्प है कि 21 काउंसिलों में से जो पहली 8 काउंसिलें हुई हैं, पहली 8 काउंसिलें, वो यीशु मसीह और पाक तस्लीस के मुतल्लिक मसाइल की निशानदेही करती रही। तो एक कलीसिया की तारीख का तकरीबन 1000 साल, 1000 साल यीशु मसीह की दो जातों, इलाही और इंसानी के मुतल्लिक और पाक तस्लीस के मुतल्लिक चंद मसाइल थे, वो बहस करते करते गुजर गया। और फिर बिल आखिर ये कहा गया कि यीशु मसीह कामल इंसान, ह्यूमन बीइंग लाइक अस, हमारी मानद, और कामल खुदा था, और बहुत सारी और बातें। तो 1000 साल में जितनी भी पहली 8 काउंसिलें हैं, वो ऐसे ही की बातचीत करती थी। उसके बाद अगली काउंसिलें आती हैं, 9वीं काउंसिल से 20वीं काउंसिल, 9वीं काउंसिल से लेकर 20वीं काउंसिल। इसमें इबादतों, सकरामेंटों के बारे में, खासकर कहानत और पापायत, पोप साहब के इख्तियार के बारे में बातें होती रही 1900 साल। और कलीसिया इंतजामी अमूर, कवानीन के बारे में बात। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इसमें अवाम की बातें, दुनिया की मुआशरती बातें, लोगों की बातें, मोमिन की जिंदगी के मुतालिक कोई पॉइंट नहीं है। 21वीं काउंसिल वेटिकन मजलिस दोम, अगर आप पिछला पहली 20 काउंसिलों को अच्छी तरह जानते हैं, जैसे मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, फिर 21वीं काउंसिल वेटिकन मजलिस दोम, जो तीसरी दुनिया की इलाहियत जिसको लेके चलती है, मकतबारा में पाकिस्तान लेके चलता है, उसको बेहतर समझेंगे। वेटिकन मजलिस दोम 21वीं काउंसिल पहली काउंसिल है, वाहिद काउंसिल है जिसने लोगों के मुतालिक फिक्रमंदी और दिलचस्पी जाहिर की। जो बात लोगों के मुतालिक हो उसको हम कहते हैं पासबानी, पास्टोरल, कि उसका ताल्लुक, जैसे चिरवाहा अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है, गले की निगहबानी करता है, और आजकल पोप फ्रांसिस तो बहुत ही बातें इसके मुतालिक करते हैं। तो दुनिया के मुतालिक कि आज की दुनिया क्या है, उसमें कलीसिया ने कैसे रहना है, आज का समाज, आपका मुआशरा, यानी दौरे हाजरा में कलीसिया, ये एक वेटिकन मजलिस दोम का एक दस्तावेज है, लेकिन मैं एक मजमून के तौर पे बता रहा हूँ कि वेटिकन काउंसिल जो आलमी 21वीं काउंसिल है, इसका सबसे अहम तरीन और मुनफरद थीम ये था कि कलीसिया दुनिया में रहती है, दुनिया की निजात के लिए, दुनिया की तब्दीली के लिए किस कलीसिया को कैसे रहना चाहिए। इससे जो पहली काउंसिलें थी
وہ کلیسیا کے اندر کی بات کرتی تھی کہ کلیسیا کو اندر کرنی ہے، کائنوں کا کیا اختیار ہے، پوپ صاحب کا کیا اختیار ہے، کلیسیا کے اندر کے مسائل، اس کو کہتے ہیں ہم انترا کلیسیا، کلیسیا کے اندر کے مسائل، کلیسیا کے گول دائرے کے اندر۔ آج بھی ہماری جو مناجات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہماری کلیسیا کے، ہمارے ایمان کے، مسیحوں کے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ جو ایکسٹرا کلیسیا ہے، کلیسیا سے باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہاں آفت آ رہی ہے، کہاں وبا آ رہی ہے، کہاں انسانوں کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، جنگیں، ان کے متعلق نہیں ہم دعائیں کرتے، ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ ویٹیکن مجلس دوم نے یہ زور دیا کہ ہماری دلچسپی بڑھنی چاہیے، مقامی اور عالمی، لیکن ساتھ ساتھ جو دنیا کی ہے مومنین کے متعلق، اور خاص کر ویٹیکن مجلس دوم نے اجتماعیت، کہ مل جل کر کام کرے، اکیلے پوپ صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنے کارڈینل کے ساتھ یا بشپ سینٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ کرے۔ جو کاؤنسل آف ٹرینٹ تھی، میں آپ نے یاد رکھنا ہے، لاختائیت، کہ پوپ جب بات کرتا ہے تو غلطی نہیں کر سکتا، خطا ہی نہیں کر سکتا، پوپ بے خطا ہے، انفیلیبلٹی آف پوپ۔ اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا کہ پوپ اکیلا جو بھی فیصلہ کر دے، کسی کو دے دے، وہ سب ٹھیک ہے۔ ویٹیکن مجلس دوم نے کہا نہیں، اجتماعیت، کہ جیسے جمہوریت میں مل جل کے بات کرتے ہیں، پوپ صاحب بھی اپنے کارڈینل کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ، بشپ سینٹ میں سنا جا سکتا ابھی؟ ہیلو، ایم آئی آڈیبل؟ جی فادر جی، جی فادر ابھی آڈیبل۔ میں ویٹیکن مجلس دوم جو کلیسیا کی 21ویں عالمی کونسل ہے اس کی بات چیت کر رہا تھا کہ کیسے ویٹیکن مجلس دوم نے مومنین کو کلیسیا کے مرکز میں لے آئے ہیں۔ مکتبہ پاکستان جتنی باتیں کرتا ہے وہ نئی باتیں نہیں ہیں، اس کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ ویٹیکن مجلس دوم کی باتیں ہیں۔ اور پوپ فرانسس جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو عالمی بشپ سینٹ 2023 میں ہوگی، جس کی تیاری ہو رہی ہے اور جس کی تیاری میں مکتبہ پاکستان نے بہت کام کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے، یہ ویٹیکن مجلس دوم کی باتیں ہیں جو کلیسیا بھلا بیٹھی ہے، بھولی بسری باتیں ہیں، اور مکتبہ پاکستان یا پوپ فرانسس دوبارہ سے زور لگا کے سامنے لاتے ہیں۔ تو ابھی میں کوئی باتیں کروں گا اہم عالمی کونسل، چوتھا نقطہ۔ تو میں چاہوں گا سلائیڈ لگایا جائے، یہ جو سلائیڈ ہے 5، 6 اور 7واں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلائیڈ جی یہی ہے، اور اس کے بعد آگے بھی اگلا بھی آئے گا، ادھر ہی رکھیں۔ یہ اسی کتاب کے اندر ایک صفحہ ہے، اس کا یہ سلائیڈ ہے جہاں 21 کونسل لکھی ہوئی ہیں کہ پہلی کونسل نکائیہ اول پوپ سلویسٹر اول کے زمانے میں ہوئی اور 325 میں ہوئی۔ یہ تھوڑا سا قریب کر سکتے ہو سکتا ہے، تھوڑا صرف دکھانے کے لیے آپ جو شرکا ہیں پڑھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا، میں نے تو اینک لگائی ہے، میں تو پڑھ سکتا ہوں۔ جی فادر جی پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ مشکل، اوکے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلی، یہ کل 21 کونسلیں ہیں۔ مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا تو صرف 7 کو قبول کرتی ہے، لیکن کیتھولک کلیسیا 21 کو قبول کرتی ہے۔ تو یہ جو پہلی کونسل ہے نکائیہ کی کونسل 325 میں ہوئی تھی، یہ 2 مہینے کونسل رہی تھی، اور ایک بدتی تھا آئرینیوس، اس کے خلاف تھی۔ آئرینیوس نے کہا تھا کہ یسوع خدا باپ کی فطرت رکھتا ہے، تو انسان نہیں ہے، الہی ہے۔ تو پھر نکائیہ کا عقیدہ اسی سے نکلا، اور اس نے ایسٹر کی تاریخ بھی مقرر کی۔ تو ایسے دوسری کونسل ہے 321 میں جو ہی 381 میں
वो 56 साल बाद हुई। इसका जो दरमियानी वक्फा है पहली से दूसरी काउंसिल का 56 साल, 56 ईयर्स के बाद, और ये 3 साल रही। और इसने भी आरीनियस के खिलाफ, और एक अपोलोनियारिज्म की एक बिदत थी, वो भी उसके खिलाफ बातें की, और 2 नुक्तों पे जोर दिया, रूल कुदस की अलूहियत, और दूसरा था निकाया के अकीदे में कोई तरमीम की और आगे बढ़े। तीसरी काउंसिल है एफसुस 431 में। एक बिदती था, मैं धीमी आवाज में कहना चाहता हूं क्योंकि आजकल उसे बिदती नहीं कहा जाता, नेस्तूरियन। इराक में ये कलीसिया बहुत है जो नेस्तूरियन को मानती है, और बहुत सारी बातें, खूबसूरत बातें मैं अभी नहीं करूंगा। तो इसके खिलाफ बात करने के लिए एफेसुस में, ये तुर्की में है, 20 साल बाद, ये 50 साल बाद ये काउंसिल हुई, सॉरी 50 साल बाद। और इसने एक जो अहम बात है जो आपने याद रखनी है कि इसमें माँ मरियम को यीशु मसीह की माँ और मादरे खुदा की माँ, थियोटोकस यूनानी जुबान में करार दिया गया। इसलिए इस्लाम में मरियम की नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो दूसरा हिस्सा है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, वो है। कुछ लोग इसको थोड़ी सी तरमीम कर कहते हैं खुदा, हमारे गीतों में भी इस पे जोर दिया जाता है। चौथी काउंसिल जो है चौथी काउंसिल जो थी कैल्सियन, जिसमें 451 में हुई, वो भी एक बिदत के खिलाफ था, मोनोफिजिस्टिज्म के, यीशु में एक जात है, 2 जातें हैं। तो इस कलीसिया ने, इस काउंसिल ने कहा कि यीशु मसीह में 2 जातें हैं। बहरहाल और भी हैं अहम। शर्की कलीसिया के लिए एक 553 में काउंसिल हुई, कुस्तुनतुनिया दोम, यानी ये कुस्तुनतुनिया के मुकाम में, ये तुर्की में है, कुस्तुनतुनिया के मुकाम में दूसरी काउंसिल थी। तो इसने एक सिकंदरिया, मिस्र का शहर है सिकंदरिया, वहां के एक बहुत बड़ा आलिम था ओरिजिन, उस पे फतवा लगाया। उसने कुबिदती तालीम दी थी, और उस पर हम नहीं जाएंगे। एक और फिर कुस्तुनतुनिया की तीसरी काउंसिल, कुस्तुनतुनिया शहर में होने वाली तीसरी काउंसिल, जो 680 से लेकर सितंबर 681 तक रही, वो। और तीसरा निकाया की दूसरी काउंसिल 787, मैंने पहले बताया, जिसने तस्वीर की परस्तिश और ताजीम को जायज करार दिया, मुजस्समों को जायज करार दिया। तो ये जो 7 काउंसिलें हैं, पहली 8 काउंसिलें, ये शर्की कलीसिया भी कबूल करती है, ओरिएंटल चर्चेज जिसको हम ऑर्थोडॉक्स चर्चेज कहते हैं। अब हम रोमन कैथोलिक कलीसिया की तरफ आते हैं। जो पहली 8 काउंसिलें हैं उनको शर्की कलीसिया भी मानती है, लेकिन जो कैथोलिक कलीसिया वो सारी 21 काउंसिलों को मानती है। तो मैं 3 अहम तरीन की बात करूंगा। 19 नंबर जो 19वीं काउंसिल है, वो एक अगला प्लीज दिखाइए स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थैंक यू। तो ये 19, 20 और 21, इनकी मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। काउंसिल ऑफ ट्रेंट, ये मैं आपको पहले बताऊं कि ये 1517 में प्रोटेस्टेंटिज्म आया था, रेफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर की वजह, 1517 में, ये उसके बाद हुई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जितनी भी बातें हुई होंगी वो प्रोटेस्टेंटों का दिफा, प्रोटेस्टेंटों की तालीमात के खिलाफ और कैथोलिक कलीसिया के ईमान के दिफा की बातें होंगी। इसलिए सियाकुसबाग जानना बहुत जरूरी है कि ये किस वक्त हुई। तो ये जो ट्रेंट की काउंसिल है ये 1545 में हुई, सन 1545 में। और जो रेफॉर्मेशन था, प्रोटेस्टेंट थे, वो 1517 में बने थे, 1517 में।
2017 में 500 साल मनाए गए थे 2017 में। तो इसमें ये 18 साल जारी रही वक्फों के साथ, 3 दफा वक्फे हुए काफी लंबे लंबे। तो प्रोटेस्टेंटों की कुछ असलाह को अपनाया गया, कबूल किया गया और कलीसिया के कानून को हतमी शक्ल दी। फिर मुकद्दस सहाइफ का किरदार, बाइबल मुकद्दस के किरदार को वाजे किया गया और 7 सकरामेंटों पर भी बात की गई और खासकर पाक खिदमत को निकाह के सकरामेंट से बाला ऊपर करार दिया गया, जिसकी मैंने पहले अपनी किताब की भी बात की है। 20वीं जो वेटिकन की पहली काउंसिल है, वेटिकन मजलिस अव्वल 1870 में हुई। हैरत की बात है, मेरी बात सुनिए, 324 साल बाद काउंसिल हुई, यानी 19वीं काउंसिल 1563 में खत्म हुई और उसके 324 साल बाद ये वेटिकन अव्वल, वेटिकन मजलिस अव्वल हुई। और मैंने आपको पहले बताया कि इसने पोप की लाखतायत, इनफैलिबिलिटी ऑफ द चर्च, पोप कि पोप जो बात करता है वो खता नहीं कर सकता। और फिर इल्हाम की भी तारीफ की, सहाइफ की तशरीह की और ईमान और अक्ल का ताल्लुक, क्योंकि मॉडर्न साइंसेस आ रही थी तो पहले कलीसिया अक्ल को नहीं मानती थी, रीजन को नहीं मानती थी, फिर मानना शुरू हो गया इन दोनों का ताल्लुक क्या। तो 21वीं काउंसिल वेटिकन मजलिस दो, इसके 16 दस्तावेजात हैं। ये मेहरबानी से स्लाइड नंबर 1 लगाइए, स्लाइड नंबर 1। तो ये वेटिकन मजलिस दोम की जो 1962 से 1965 तक हुई, ये उसकी 16 दस्तावेजात है। यूं कहिए कि कलीसिया की तालीम के 16 बड़े मौजूआत हैं कि वेटिकन मजलिस दोम में कलीसिया ने किन किन मौजूआत पर गौर किया और फिर उसके मुताबिक इस्लाह की। कलीसिया ने अपनी भी इस्लाह की। मसलन काउंसिल ऑफ ट्रेंट में प्रोटेस्टेंटों को मिलना, उनकी बाइबल पढ़ना, हाथ लगाना, उनके गिरजे जाना, उनके साथ रिश्ता देना, ये सब गुनाह थे, दूर। और हमारे कई गीत भी बने हुए थे पंजाबी में, साख देना दूजी मिशन नादानी हुंदी है, जान बुझ के गवाना जिंदगानी हुंदी है। तो ये मना था सब कुछ। वेटिकन मजलिस दोम ने उलट कर दिया कि प्रोटेस्टेंट्स के साथ हाथ बढ़ाओ, उनके साथ मिलो, यानी डॉक्यूमेंट नंबर 6 बैनुल कलीसिया इत्तेहाद अकुमानियत पे, और फिर डॉक्यूमेंट नंबर 7 के शर्की कैथोलिक कलीसिया ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के साथ मिलो, और फिर डॉक्यूमेंट नंबर 15 दूसरे मज़ाहिब के साथ कलीसिया के ताल्लुकात रखो। तो सारा डायलॉग पे, मुकालमा पे जोर दिया, फिर मास मीडिया पे जोर दिया, बहुत सारी बातें। तो वेटिकन दौरे हाजरा में कलीसिया के किरदार, आज के जमाने में कलीसिया का क्या जिम्मेदारी, क्या किरदार, उस पर जोर दिया। इबादत में तरमीम और तजदीद की। आप तो सारे जवान हैं, मैं जरा उस दौर का हूं, तो उस वक्त इबादत जो होती थी, अल्तार दीवार के साथ होता था और इबादत में फादर लोगों की तरफ पुश्त करके नमाज करता था। सिर्फ जब कहना होता था खुदावंद आपके साथ हो, तो वो लोगों की तरफ मुंह करता था, कहता खुदावंद आपके साथ है, वो कहता आपके साथ भी हो, और फिर दीवार की तरफ मुंह कर लेता था। दूसरी बार मुंह करते थे जब कहते थे देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, तो फिर वो मुंह कर लेता था दीवार की तरफ। सारी पाकमास दीवार की तरफ फादर का मुंह होता था और लोगों की तरफ पुश्त होती थी, लोग फादर को, अल्तार को नहीं देख पाते थे। तो वेटिकन मजलिस दोम ने सबसे पहला कहा कि अल्तारों को तोड़ो, मुंह उसका दूसरी तरफ करो, लोगों की तरफ, लोगों देखे अल्तार पे क्या हो रहा है। बहुत बड़ा ये तरमीम थी, और भी बहुत सारी बातें। उस वक्त लतीनी जुबान में नमाज होती थी, मैं ऑल्टर बॉय होता था, मैं भी लतीनी जुबान में फादरों के जवाब सीखने पड़ते थे, ये बातें, नमाजें सारी। और वेटिकन मजलिस दोम ने कहा नहीं, लोगों की जुबान में नमाज कराओ, बहुत बड़ी। और फिर मोमिन की शराकत पे जोर दिया। तो आप महसूस करें कि मकतबा में पाकिस्तान की सारी जुबान ये वेटिकन मजलिस दोम की जो 16 दस्तावेजात हैं इनमें से ली गई है। मेरे आउटलाइन पे जाएं। नतीजा
ना भी जाए तो मैं नतीजे के तौर पर बता। वैसे ये चूंकि आलमी काउंसिलें हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दरमियानी वक्फा, एक काउंसिल से दूसरी काउंसिल का दरमियानी वक्फा 324 साल भी रहा है, 254 साल भी रहा है, 228 साल भी रहा है, 107 साल भी रहा है, 102 साल भी रहा है। मैंने लंबे से लंबे अरसे, बाकी कुछ चंद महीने, यानी एक काउंसिल से दूसरी काउंसिल, एक काउंसिल के बाद दूसरी कब हुई, तो लंबा तरीन है 324, फिर 254, 228, ये सारी मजलिसें मैंने लिखी है, इन पे मजीद बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दौरानिया जब काउंसिल हुई तो वो कितने साल या महीने जारी रही, तो सबसे लंबी काउंसिल जो है वो 14 साल 2 महीने, एक 18 साल 1 माह भी हुई काउंसिल ऑफ ट्रेंट की, उसके 25 इजलास हुए, 3 बड़े बड़े इजलास हुए, लेकिन 25 उसमें छोटे छोटे। फिर 14 साल भी रही, तो 4 साल 5 साल कुछ महीने रहे। मैंने बड़े बड़े नाम लिए हैं। हैरत की बात है कि जो 16वीं 17वीं 18वीं 19 20वीं 21वीं काउंसिल है, 16वीं से लेके दुरानिया बढ़ता जाता है। 16वीं काउंसिल 3 साल 5 महीने रही, फिर 17वीं काउंसिल 14 साल 2 माह, 18वीं काउंसिल 5 साल, यानी होती रही वक्फे वक्फ के साथ। बिशप अपने मुल्कों को चले जाते थे, फिर अगले साल मखसूस महीनों में वापस आ जाते थे। फिर 19वीं काउंसिल ट्रेंट की काउंसिल 18 साल और 1 महीने जारी रही, और फिर वेटिकन नावल काउंसिल 8 महीने, और फिर वेटिकन दोम 21वीं काउंसिल 4 साल। लेकिन हाँ, गुज़श्ता 57 साल से कोई काउंसिल नहीं हुई। वेटिकन मजलिस दोम के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा है, कोशिश की है कि वेटिकन काउंसिल सोम, थर्ड वेटिकन काउंसिल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी जगह आलमी बिशप सिनड ने ले ली है। अब हर 4 साल बाद आलमी बिशप सिनड होती है, अभी 2023 में होगी, और उसमें सारी बातें हो जाती है। इसलिए कोई काउंसिल नहीं हुई, ना कोई उम्मीद है। गुज़श्ता 57 साल से कोई काउंसिल नहीं हुई। हेलो, ये स्लाइड खत्म कर दे, स्लाइड खत्म कर दे। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही? ओके, मैं नतीजे के तौर पे मुख्तसर बात करना चाहता हूं। पहली बात, ये नतीजा इसलिए भी अहम है कि ना सिर्फ आज के मजमून के बारे में, लेकिन इनका ताल्लुक आपके खानदान से भी है, हिस्ट्री से है। पहला नुक्ता कि कलीसिया मोमिन और गुनाहगारों का मजमुआ है। हर खानदान में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, आप माने या ना माने, हर जगह पे, हर मुआशरे में। तो इसी तरह कलीसिया मोमिन और गुनाहगारों का मजमुआ है। कलीसिया ये फख्र नहीं कर सकती कि जब से शुरू हुई है मुकद्दस लोग, पाक लोग ही रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई भी मुआशरा ऐसे नहीं होता, हर खानदान और मुआशरे में। लेकिन अहम बात यह है कि खुदावंद का रूह हर दौर में, हर मुश्किल में रहनुमाई करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले मैं बात बताना चाहता हूं, आप इस बात को माने कि खानदान में अच्छे हालात भी होते हैं, बुरे हालात भी होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नेगेटिव बातें भी होती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन खुदावंद का रूह हर दौर में, हर मुश्किल में हमारी रहनुमाई करता है। दूसरा नुक्ता, हर तारीख में निशेबो फराज और बहरान होते हैं, बड़ी बड़ी तारीखों में भी, लेकिन आपके कौमों की तारीखों में, आपके खानदान की तारीख में भी।
اور اداروں میں بھی، تنظیموں میں بھی یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن جو اہم بات ہے کہ خدا وفادار ہے، خدا قائم رکھتا ہے، خدا برقرار رکھتا ہے، خدا یہ ہمت دلیری اور حوصلہ دیتا ہے، ایک دوسرے کی مدد تعاون آتی ہے کہ ہم نکلتے ہیں ہر جھکاؤ سے، ہر بحران سے. جب ہم نیچے گرتے ہیں، ہر تنزلی سے، ہر زوال سے، پست حالی سے ہم اوپر آتے ہیں. تیسرا کہ جو تاریخ ہے، خواہ وہ کلیسیا کی ہو یا خاندان کی ہو، وہ مستقبل کی جانب جانے کا نام ہے، ماضی کی ان طرف نہیں. جو ماضی میں تھا وہ گزر گیا، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنا دکھ اور درد اور کرب اور زخم نہیں بنا سکتے کہ جس وقت بھی یاد کریں اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا اور ہمیں درد کرے. جو ماضی ہے وہ گزر چکا ہے، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے. اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن تاریخ آگے کی طرف جاتی ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے. وہی خدا جس نے پچھلی تاریخ میں ہمارا ساتھ دیا، ہمیں لے کے چلا، وہی خدا آگے جا رہا ہے. ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں یقین کے ساتھ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو ویٹیکن مجلس دوم اور اس کے بعد عالمی بشپ سینٹ 2023 جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جس کی مقام پاکستان نے بہت تیاری کی ہے، جگہ جگہ جا کے پاکستان کے کئی مقامات پر جا کر لوگوں کو عالمی بشپ سینٹ 2023 کی سمجھایا ہے کہ پوپ فرانسس کیا چاہتے ہیں. تو کہ عالمی بشپ سینٹ کا کوئی مضمون نہیں ہے، لیکن کلیسیا کو کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی کلیسیا ہونا چاہیے، مومنین کی کلیسیا ہونا چاہیے، یہ عالمی بشپ سینٹ 2023 کا موضوع ہے. میرا چوتھا نقطہ کہ کلیسیا بیک وقت مقامی بھی ہے اور عالمگیر بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عالمگیر کلیسیا کے مسائل ہیں اس کا مجھ سے کیا. دیکھو آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے خاندان کا حصہ بھی ہیں، لیکن محلے کا حصہ بھی ہیں، ملک کا حصہ بھی ہیں، بر اعظم کا حصہ بھی ہے اور عالمی حصہ بھی ہیں. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو متاثر کرتا ہے. آپ کی زندگی کو کوئی جزیرہ نما نہیں ہے کہ آپ علیحدہ الگ تن تنہا رہے، کہ آپ کو دوسروں کا کوئی تعلق نہیں. جو سبزی منڈی کا بھاؤ ہے وہی آپ کی چنگیر میں، آپ کے کچن میں آتا ہے. تو ہم ہر وقت عالمگیر بھی ہیں، دنیا کا حصہ بھی ہیں، فضا کا جو بھی خلا میں ہوتا ہے، جو بھی ہوا ہے ہم وہ بھی سونگتے ہیں، جس میں سانس لیتے ہیں ہم، اور مقامی بھی ہیں. تو مقامی کلیسیا مقامی بھی ہے، ہمارے اپنے حالات سے آکوش باق بھی ہے، لیکن ہم عالمگیر کلیسیا کی تاریخ کا حصہ بھی ہے. وہ ہماری وراثت ہے، وہ ہمارا ورثہ ہے، اور اس میں عالمی کونسلوں کے متعلق آج کا مضمون تھا. میں نے شروع میں کہا کہ تاریخ کا مضمون بہت خشک ہوتا ہے. امید ہے کہ آج کچھ نہ کوئی سبزہ آیا ہوگا، تو اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مضمون خشک ہوگا، لیکن ایک میں نے ضرور بات کہی تھی، وہ تو مجھے توقع کرنی چاہیے کہ معلومات آپ کے لیے خشک ہوں یا جیسی بھی ہوں، لیکن نقطہ نظر آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ مکتبہ نامہ پاکستان اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ کو، اپنے معاشرتی حالات کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کا نقطہ نظر کیا ہے اور کیسے کن باتوں کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہے. تو آج کے لیے میری طرف سے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.